गिवन दैट px इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, लेट पहले ही कर लेंगे, लेट px इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड देन प्लस 10। जब भी हम ये क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि अगर माइनस प्लस या किसी कोफिशिएंट में थोड़ा भी डिफरेंस आ गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अनदर पॉलिनोमियल, लेट अस, दिस इज gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, and after that remainder, so this is let rx equal to x plus alpha. These three things is given, and our requirement to find the value of k and the find value of alpha, ये हमें बताना है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है और k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली वी विल यूज द रिलेशन बिटवीन डिवाइजर, डिविडेंड, कोफिशिएंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला जो रिलेशन है, उसी को हम यहाँ पे, ये रिमाइंडर है आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ px divide by gx, because question says that if we divide by this polynomial to given polynomial then we will get the remainder। तो यहां हमें पहले ही कह दिया है कि इसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन का सिंपल सिंबल यूज करेंगे, और जो हमें कोशेंट मिलेगा उसके लिए हमने ये सिंबल बना लिया, और दिस इज x रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब and plus 16x square minus 25x plus 10, and after that this is divisor x square minus 2x plus k and quotient is required। तो आप देखोगे हमने आपको क्या बताया, आप डिग्री को माइनस कर लोगे। सबसे पहले कॉफिशिएंट देखो, कॉफिशिएंट तो दोनों का 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉफिशिएंट 1 है तो कॉफिशिएंट तो हम लिखेंगे नहीं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिग्री है वो माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, मींस वी विल राइट हियर एक्स स्क्वायर। ओके, एंड नाउ यू मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर इनटू दिस डिवाइजर, सो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर यू विल गेट एक्स रेज टू द पावर ऑफ 4 एंड माइनस, सो विल पुट माइनस and 2x into x square, so we will get 2x cube। डिग्री केवल यहाँ पे ऐड हो जाती है, 1 है और ये 2 है तो 3 हो जाएगा, एंड प्लस kx स्क्वायर, सो वी विल राइट प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ change all signs, so this is minus, this is plus, this is again minus। okay, so x raised to the power of 4 cancelled out because one is negative and second is positive, and after that this is plus 2x cube, this is minus 4x 6x cube, so we will get minus 4x cube। ध्यान दीजिए 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 6 बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस ही आएगा। And after that this is the variable constant and this is the number, so we will not subtract it। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से माइनस नहीं कर पाएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, we will write just like that 16 minus k, because this is the negative sign, so 16 minus k and x square is same to same। after that minus 25 just bring down and plus 10 also bring down। ठीक है, same to same। and now you observe that here is the minus 4 is the coefficient। okay, so you will write here minus 4 as the coefficient first of all। okay, and degree is 2 and here is degree is 3, so subtract it, 3 minus 2 means 1, so here is requirement only x।
Now you multiply this to divisor. So 4 2 4 minus 4x cube. This is the multiplication, and minus and this minus plus, and x into x, x square, and 4 2 ja 8, 8x square, and after that minus 4x into k, माइनस है ना तो माइनस ही आएगा, एंड 4k, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 4k एंड x ऑल्सो. Now again you subtract it. So this is positive sign, this is negative sign, this is positive sign. So again try to subtract it. देखिए subtract करने से हमें क्या मिलने वाला है. Yes, this term is cancelled out because positive and negative same coefficient and same variable, same degree. And now this is 16 minus k and minus 8. So you will subtract number to number. 16 minus 8 means you will get 8, and minus k, it is same to same, x square. And again you observe this is the constant 4k and this is the number, so you will not subtract it directly, you will write it. 4k is positive, so we will write plus 4k first of all, and then minus 25 is negative, so we will write minus 25 and k plus 10. 10 is same to same, this bring down to here. Okay, after that you will observe here is degree is 2 and here is also degree 2, so no, 2 minus 2 means no variable is required, and coefficient is 8 minus k, so here you will write 8 minus k is positive, so you will write plus 8 minus k as same to same. ये पूरा लिख लेंगे, तो 8 माइनस के को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के ही आना है, 8 माइनस के एंड एक्स स्क्वायर, बिकॉज दिस एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस 8 माइनस के, तो हम ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे. अगेन माइनस मल्टीप्लाई टू प्लस, so you will get minus, and 2 multiplied to this number, so you will direct multiply. 2 8 ja 16, okay, 16, and 2 minus k, so you will get 2k, and then x, so you will write x, और यहां भी x था, मैंने k लिख दिया था, ये x है, okay, and after that k multiplied to this number, so it is 8k and minus में k square. ओके, यू विल गेट दिस थिंग्स. k को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8k हो जाएगा, और k को माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग्स, ये मिला. अब आप देखोगे कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है. सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, एंड दिस इज अगेन माइनस. ओके, सो सी हियर, this is the negative and positive term cancelled out. After that this 16 minus 2k is positive, and this is also positive. So see here, this is 4k minus 2k, how much? This sign you will consider, not negative sign. Plus, plus means this is same to same. So dear, 4k minus 2k, how much? 2k. And then 16 माइनस 25, 25 से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 9. ओके, बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन द 16 एंड 25 हैव द नेगेटिव साइन, सो इट इज माइनस 9, एंड x you will write same to same. After that here you will see 8k minus k square and 10, all things are different, so you will write directly, that is see here, this is the negative sign. First you see very carefully, if it is negative sign means all the sign will be changed here, minus 8k and minus minus plus k square, so it will be plus k square. एक बार समझ लेना ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूं. यहाँ पे माइनस को जब आप ये साइन लोगे माइनस, तो माइनस का 8k होगा और माइनस माइनस प्लस का k स्क्वायर होगा, तो प्लस का k स्क्वायर लिख लिया, माइनस का 8k भी लिख लिया,
एंड देन प्लस का 10, तो प्लस का 10 भी लिख लिया. ओके डियर, नाउ degree is here 2 and here is degree 1, so the remainder is smaller than the divisor, so the process is end. अब यहीं पे इसका प्रोसेस एंड हो गया, अब हम इसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इतना ही रहना है. ठीक है, अब यहां से ही हमें आंसर मिलने वाला है. तो देखिए अब हम जब ये हमें मिल गया 2k माइनस 9x एंड इट इज k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये हमारा हो गया रिमाइंडर. ठीक है, और तो सबसे पहले हम रिमाइंडर की रिमाइंडर से बात करेंगे. ओके, हियर यू विल गेट द एक्चुअल रिमाइंडर एंड हियर रिमाइंडर इज गिवन. सो सी हियर, बट रिमाइंडर x plus alpha, and here you will get the remainder and we get remainder, ये given है, this is given remainder, and here we get remainder by obtained. It is dear 2k minus 9x and plus k square minus 8k plus 10. So these two remainder should be equal, क्योंकि ये भी रिमाइंडर इसी क्वेश्चन का है और ये रिमाइंडर आपने फाइंड किया है. सो therefore this implies that x plus alpha equal to 2k minus 9x and plus k square minus 8k plus 10. So you will only compare. By comparison you will get the value. Here dear, you can see that the coefficient of x into the left hand side is 1 and coefficient of x into the right hand side is 2k minus 9. So by comparison, on comparing, you will get it is 1 equal to 2k minus 9. Why? Because both things are equal, it is given. दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो ये कोफिशिएंट बराबर होगा और ये कांस्टेंट भी इक्वल होगा. तो कांस्टेंट की हम बाद में बात करेंगे, हम पहले इसी से बात कर लेते हैं कोफिशिएंट से. सो कोफिशिएंट ऑफ x is 2k minus 9 and कोफिशिएंट ऑफ x is 1. So it is 1. Now 1 transpose to the left side, so 9 will be becomes positive. So 2k equal to 9 plus 1 means 10. Here you will get कि 2k equal to 10, this gives you k equal to 5. तो दोस्तों हमें एक वैल्यू तो मिल गया, k का वैल्यू कितना आ गया 5. अब हमें वैल्यू किसका और चाहिए था, अल्फा का वैल्यू और चाहिए. तो अल्फा के लिए अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे. मींस अल्फा इक्वल टू दिस थिंग्स, this should be alpha equal to k square minus 8k plus 10. तो वो भी हमें मिल जाएगा. तो चलिए अब उसको देखते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगेन कंपेयर कांस्टेंट टर्म. So constant term here dear alpha, and into the right hand side this is k square minus 8k and plus 10. But dear you will get the value of k is 5. k का वैल्यू तो आपको 5 मिल चुका है, तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए. पुटिंग k इक्वल टू 5 वी गेट, तो देखिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा k मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10. सो डियर 25 प्लस 10 यहां लिख लेते हैं एंड माइनस 8 5 जा 40 एंड दिस इज 35 minus 40. So what you will get here, minus 5. So finally you will get alpha equal to 5 and k equal to minus k equal to plus 5 and alpha equal to minus 5. So this is the answer of this question.
यही दोनों चीजें हमें चाहिए थी, तो दोनों चीजें हमें मिल गई। अल्फा का वैल्यू आपका कितना है -5 और के का वैल्यू है आपका 5। तो यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं था, आपको डिवीजन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को कंपेयर करना था। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो गिवन था वो x प्लस अल्फा था और यहाँ पे रिमाइंडर ये है। तो हमने पहले फर्स्ट मींस कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर किया और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर लिया, तो हमें दोनों आंसर मिल गए। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना था। अब देखिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर फिर से, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में, क्वेश्चन नंबर हम 1 ही लेंगे, एक्सरसाइज 3.2। एंड 3.2 में दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है क्या, देखिए मैं पढ़ता हूं स्टेटमेंट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस, और 3.1 में क्या था, फाइंड रिप्रेजेंट द ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है केवल आपको इक्वेशंस बनाने थे, और ग्राफिकली का मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करना था, दैट्स इनफ। बट हियर this question is says that find the solutions but graphically। तो ग्राफ खींच के हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे, बहुत आसान सी चीज है, बस हमें समझना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पे है, 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो यहाँ पे ये बात कही गई है आपसे। तो देखो कितना आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब वर्ड प्रॉब्लम जो हो ना, उसका सोल्यूशन सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो चलिए लिखते हैं, लेट द नंबर of boys equal to x and the number of girls this is y। ठीक है, अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हाउ मेनी स्टूडेंट, 10। इन दीज 10 गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर इंक्लूडेड। सो वी विल राइट हियर x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें ये पता नहीं कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, तो हमने गर्ल्स ले लिए y और बॉयज ले लिए x, तो दोनों को प्लस किया तो 10 होना चाहिए। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जनरली हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अगेन बाई ATQ, दूसरा कंडीशन क्या है, it is says that the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। अब यहां पे कहा गया नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर, नंबर ऑफ गर्ल्स मोर मीन्स गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है। अब हमें दोनों को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज में 4 प्लस कर देंगे, अभी दोनों इक्वल हो गए। समझना मेरी बात को। क्वेश्चन सेज दैट इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज में भी 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो बोथ आर इक्वल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज y and the number of boys is x and this is 4, same to same। okay, now you transpose this y to right hand side, so you will get x by transpose to right hand side, you will get minus y and plus 4 है ना, तो आप चाहो तो इसको +4 रहने दो या फिर -4 +4 ही कर लो, इक्वल टू 0।
ठीक है, क्या किया, केवल y को ट्रांसपोज करेंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, y x प्लस 4 तो सेम टू सेम ही रहेगा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो गया, दिस इज द एल्जेब्रिकली। लेकिन हमें एल्जेब्रिकली से मतलब ही नहीं है, हमें टोटल ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ग्राफिकली सोल्यूशन के लिए हमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा। तो हमें दोनों इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, आप x या y का कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू ट्रांसपोज दिस y टू राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट 10 माइनस y। देखो राइट हैंड में जो लिखा वो पहले लिखना है, नहीं तो साइन गलत हो सकते हैं। राइट हैंड में क्या लिखा 10, तो आपने पहले 10 लिखा, फिर y को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो गया। आफ्टर दैट यू विल मेक ए टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। y इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर दो। तो देखो x और y यहां लिख लोगे। y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की कॉलम में आप 0 लिख दो। व्हेन y इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो क्या मिलेगा, केवल x इक्वल टू 10। यहाँ पे आ गया 10। अब आप क्या करो, y की जगह यहाँ पे क्या पुट करो कि ये रिजल्ट 0 हो जाए। तो y की जगह ही 10 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 10। तो 10 माइनस 10, x इक्वल टू भी हो जाएगा 0। सो नो मच मोर वैल्यूज रिक्वायर्ड, इतना सफिशियंट है, आपका ग्राफ इतने से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहां पे आ जाते हैं। वी गेट, तो इक्वेशन 2 में भी हम x का ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू y को ट्रांसपोज करेंगे, 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो y को ट्रांसपोज करेंगे तो इस बार y पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अगेन यू विल मेक द टेबल, फिर से टेबल बना लो एंड राइट हियर x एंड y। यहां पे हमने लिखा x और यहां पे लिख लिया y। ठीक है, तो देखिए व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द y इक्वल टू 0। पहले तो हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसे यहां भी किया था हमने, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया था, तो यहां भी y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन x इक्वल टू यू विल गेट -4। अब बोलो यहां पे y का क्या वैल्यू पुट करें कि पूरा फिर से 0 हो जाए। सो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 करेंगे, 4 माइनस 4, x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो ये टेबल भी बन गया है, दैट्स सफिशिएंट। इस वैल्यू को भी हम, इतना से ही काम हो जाएगा। ओके डियर, नाउ वी विल टेक द ग्राफ पेपर। अब हम ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर में इस दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू है आपका 10 और 0, और यहां पे है 0 और 10। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख ले रहे हैं इसे 10 और 0, और यहां पे 0 और 10। ये आपका है x, ये आपका है y। करते हैं, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस, दिस इज y एक्सिस and let this one is x axis, and this is necessary to write here x and x dash, and this is y to y dash। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो किसी थर्ड पर्सन को जब आप ग्राफ दोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें x एक्सिस कौन है, y एक्सिस कौन है, कौन सा वैल्यू आपने कहां रिप्रेजेंट किया। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 10 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंडिकेट कर देंगे, यहाँ 2 का टेबल, 2 4 6 8 10। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्केलिंग बोलते हैं। आपने स्केल ये ले लिया, मींस 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये आप जो ये इंडिकेट करोगे, ये ग्राफ पेपर में जो एक डार्क ग्रीन लाइन होती है वहां पे लिखोगे, तो उसके बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, 10। तो आप यहां पे लिखोगे 10 ऑन द एक्स एक्सिस, 10 स्मॉल स्क्वायर
इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी आप ले लो 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट्स, वहां भी हम सेम ही लेते हैं। तो ये हमने स्केल ले लिया, इसको क्या बोलते हैं स्केल, स्केल लिखना भी कंपलसरी होता है। यहां पे क्या करेंगे, -2 -4 -6 -8 एंड -10, और इसी तरह से यहाँ पे 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 6, नेगेटिव डायरेक्शन -2 -4 -6, दैट्स इनफ, ठीक है। So now start to represent the value. So first of all we take this one, x equal to 10, y तो कुछ नहीं है, so x equal to 10 means this is the point. And now second one, y equal to 10 and x equal to 0, तो y equal to 10 पॉजिटिव 10 है, इसका मतलब है y आपका यहाँ पे और ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, दिस इज 8 एंड दिस वन इज 10, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 10, ये पॉइंट आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपली स्केल ले लोगे और इन दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, ये टेबल लेंगे तो यहां पे क्या है, x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -4 इज दिस थिंग्स, तो ये आपका पॉइंट हो गया। एंड हियर इज y इक्वल टू +4, सो दिस इज द वैल्यू, x तो 0 ही है तो y, अब आप फिर से स्केल लोगे और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे और इसको एक्सटेंड कर दोगे, so this is the second line for the second equation. अब आप देखोगे here you will get the intersection point, ये आपका intersection point मिला। So dear this is the solution, means both lines are intersect each other, it means you will get the unique solution, एक ही solution आपको मिलेगा, तो वो solution क्या हो जाएगा। So dear just you take the scale and draw the perpendicular line, यहाँ पे इस तरह से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपको वो वैल्यूज मिल जाएंगे कि x और y एक्सिस पर क्या क्या वैल्यू होंगी, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए मिडिल में आ गया, x एक्सिस पर मिड वैल्यू 2 और 4 का मिड मींस आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। अब y एक्सिस पे देखो तो आपका y एक्सिस पे कितना आ रहा है, y एक्सिस पे देखोगे तो ये भी आपका 6 और 8 के ठीक मिडिल में आ रहा है, तो y आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। स्केल रखोगे और स्केल से इसको ज्वाइन करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट को y एक्सिस से, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 7 हो गया, x मींस क्या था, बॉयज, तो आप फाइनली लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, आंसर लिखना कंपलसरी है, गर्ल्स इक्वल टू 7। अब आप चेक भी कर लो कि पूरे क्लास में कितने बच्चे थे, 10 थे, तो 7 और 3 कितना होता है 10, और देखो कि गर्ल्स बॉयज से 4 मोर ज्यादा है कि नहीं है, क्वेश्चन सेज दैट गर्ल्स इज 4 मोर देन टू द बॉयज, तो देखो 3 बॉयज हैं केवल, गर्ल्स कितनी ज्यादा है 4, तो एकदम आपका आंसर जो है ना एकदम एग्जैक्ट आ गया, करेक्ट, तो आपने अपना आंसर भी चेक कर लिया। सो दिस इज डियर द ग्राफिकल सॉल्यूशंस एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन बाय ड्राइंग द ग्राफ एंड ऑब्जर्विंग द वैल्यू बाय रीडिंग द ग्राफ, ओके। तो इस तरह से अब इसमें एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है आप इसी तरह से सॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है।